So I hope you all have understood principles which I have explained you yesterday and day before. Today I am going to start principles of F.W. Taylor. I am saying again and again, please, after the class, you just go through the topics which have been taught in the class. Just read once. Okay? Principles of Henry Ford. F.W. Taylor. These are also called principles of scientific management. This is also called principles of scientific management. इसमें आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं. पहला है साइंस not the rule of thumb. Not the rule of science, not the rule of thumb. ठीक है, तो इसमें 4 टोटल प्रिंसिपल्स हैं. इसके बाद इन्होंने टेक्निक्स बताई थी मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition, experience, and hit and miss methods. He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship and scientific measurement of methods and ways of production. तो F.W. टेलर ने बोला कि कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए. यानी उसको पहले हम एनालाइज करें, एक्सपेरिमेंट करें और एक बेस्ट तरीका निकालें. ठीक है, पूरे एक काम को हम एनालाइज करें, एक्सपेरिमेंट्स करें और उसमें से एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट जॉब शुड बी टेकन आउट. एंड कोई ऐसा नहीं है कि साइंस की तरीके से करना चाहिए. कोई यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक बेस्ट मेथड निकाला जाए और उसके थ्रू वो वर्क अकॉम्प्लिश किया जाए. नॉट द रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या है? चलो इस तरीके से करके देखते हैं, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक, तो दूसरा तरीका ट्राई करेंगे. तो every work in an organization should be based on scientific methods. ठीक है, not the hit and trial basis. यानी चलो तुक्के मारते हैं, तीर या तुक्का जिसको कहते हैं. ठीक है, तो it should be based on science. That means every work should be based on experiments, procedures and one best method. देखिए, एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर का काम क्या है कि वो बेस्ट मेथड निकाल के लाए और जिससे कि कम कॉस्ट पे ज्यादा आउटपुट मिले. दैट मींस एफिशिएंसी बढ़े. ठीक है, ना कि हिट एंड ट्रायल. यानी मैनेजर को डिक्टेटर नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब. सेकंड इज हार्मनी, not discord. Harmony, not discord. ठीक है, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यानी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में there should be perfect peace in the organization. There should be perfect cooperation in the organization. Manager should understood the value of workers and the workers should understood the value of manager. देखिए, दोनों के बिना काम नहीं हो सकता, ना मैनेजर के बिना ना वर्कर्स के बिना. तो दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड कोऑपरेट ईच अदर.
So there should be perfect harmony. There should not be any disputes regarding salary, regarding work, regarding anything. There should be perfect harmony in the organization. That is the second. Okay. Second principle. Then the third is corporation. Sorry, cooperation. Cooperation, not individual. Cooperation, not individual. यानी जैसे कि मैंने बताया पहले भी, there should be cooperation among the employees, among the workers, and among the workers and the managers. ठीक है, यहाँ पर इनिशिएटिव की तरीके से काम होगा कि चलो हम ये काम हम कर लेते हैं, हम फ्री बैठे हैं, हमको ये काम दे दीजिए. यानी there should be perfect cooperation between the workers and the superiors. ठीक है, and among the superiors and among the workers there should be cooperation. ये नहीं कि ये काम मेरा नहीं है मैं नहीं करूंगा. Individualism नहीं होना चाहिए, cooperation होना चाहिए किसी भी organization में. Then only the organization will grow. Development of workers to their greatest efficiency and prosperity. The fourth is development of workers to their greatest efficiency, to their greatest efficiency and prosperity. यानी देखिए, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में. वर्कर्स से अगर आपको अच्छा काम लेना है, ठीक है, तो उनको डेवलप करना पड़ेगा. वर्कर्स उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग्स करानी पड़ेंगी, उनको परफेक्शन की तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे. ठीक है, तो वर्कर्स की ट्रेनिंग, वर्कर्स की सैलरी अच्छी होनी चाहिए. प्रॉस्पेरिटी यानी उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, so that they can give their 100%. So these are the four principles given by the F.W. Taylor. Science, not the rule of thumb. Harmony, not discord. Cooperation, not individualism. And development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Is it clear? Just go through your book, read this topic today itself. Okay, you have plenty of time these days, so just go through, read this topic, and if you have any problem, WhatsApp me on my personal and I will explain it again in the class. Okay, and keep making your copies, keep making your notes in fair copies. Keep making your, I have to check, I will check it in this year. ठीक है, मैं जब भी चाहूंगा आपकी कॉपीज मंगा लूंगा और मैं चेक करूंगा. All copies should be ready. I'm going to give you some questions to solve and make notes. ठीक है, make notes in your fair copies. You know how you are in class 12, you should know how to make notes. Okay, then scientific techniques. Now, after the principles, F.W. Taylor has given some techniques also. Techniques of
techniques of scientific management. Techniques of scientific management given by, it is also given by F.W. Taylor. First is functional foremanship. First is functional foremanship. Functional foremanship. What is this? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक डायग्राम पे ये समझाया हमको कि व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. इन्होंने बताया कि फैक्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, डिफरेंट वर्कर्स उसमें काम करेंगे, कौन से काम को कौन सा वर्कर करेगा. एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर F.W. टेलर. देखिए, फैक्ट्री मैनेजर यस, ये जो फैक्ट्री है उन्होंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया. यस, से अगेन प्लीज. Planning in charge. Planning in charge. Right. And no marker is working. Planning in charge or second one is production in charge. प्रोडक्शन इंचार्ज. देखिए, इन्होंने फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में दो लोग रखे इन्होंने. एक प्लानिंग, जो पूरी प्लानिंग करेगा फैक्ट्री की, कौन सी चीज कैसे प्रोड्यूस होगी, क्या किस तरीके से मूवमेंट होगी फैक्ट्री में, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा. एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द प्लानिंग इंचार्ज. और प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि टाइम पे प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा. एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, एंड प्लानिंग will be done by this person, that is planning in charge. Planning in charge में के अंडर में चार लोग काम करेंगे. रूट क्लर्क, then instruction card clerk, card clerk, then time and cost clerk, time and cost clerk, and fourth one is discipline. डिसिप्लिनेरियन. ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में चार लोग काम करेंगे. रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन.
ठीक है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी 4 लोग काम करेंगे। गैंग बॉस, then speed boss, then repair boss, and इंस्पेक्टर। ठीक है, तो 1 सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके, सो इन्होंने एक फैक्ट्री की डिजाइन दी। इन्होंने फैक्ट्री की डिजाइन दी कि किस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमें फैक्ट्री में आउटपुट ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, कॉस्ट कम आएगी और हम लोग ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 लोग आएंगे, एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में 4 लोग आएंगे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन एरियन। ठीक है, तो रूट क्लर्क का काम क्या होगा? रूट क्लर्क ये डिसाइड करेगा, एक स्टेप्स डिसाइड करेगा कि किस तरीके से वर्क हो, पहला स्टेप क्या हो, दूसरा स्टेप क्या हो, तीसरा स्टेप क्या हो, किस तरीके से हम प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल के तौर पे आपके स्कूल में असेंबली के बाद, अगर आपको याद हो, बहुत दिन पहले की बात होगी, 1.5 साल 2 साल होने वाला है, 1.5 साल से ऊपर होगा। ठीक है, कि जब असेंबली होती थी तो ये बताया जाता था 6, 7, 8 इधर से आएंगे, 9, 10 इधर से आएंगे, 11, 12 इधर से जाएंगे। एक रूट डिसाइडेड है और लौटने का भी रूट डिसाइडेड था। अगर रूट डिसाइड ना होता तो क्या होता? क्या स्मूथली वर्क हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रूट क्लर्क डिसाइड करता है कि किस रूट से मटेरियल आएगा, किस रूट से मूवमेंट होगा, आउट किस रूट से वर्कर्स का मूवमेंट होगा, ये रूट क्लर्क का काम है, जिससे कि एफिशिएंटली काम होता रहे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये सारे इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग इंचार्ज से लेके और ये वर्कर्स को देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करते हैं और वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये निकालता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है? ये निकालता है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, एक 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये इसका काम है। और ये टोटल डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ठीक है, डिसिप्लिनेरियन, ये इसका काम है पूरे काम में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन रखना। तो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। नाउ प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज का काम क्या है? प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है? गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होता है कि वर्कर्स का शेड्यूल मान लीजिए सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। इसका काम क्या है कि ये मशीन्स को रेडी रखे। 9 बजे इसको आना होगा, 8 बजे, 7 बजे, और इसको सारी मशीन्स को रेडी रखना है गैंग बॉस को, सो दैट वर्कर्स के आने पे आधा घंटा लग गया और मशीन्स को ऑन होने में, या अगर आपने मशीन ऑन की और कोई उसमें रिपेयर की जरूरत है, ठीक है, गैंग बॉस ये काम करता है कि वर्कर्स के आने के पहले मशीन्स को ऑन करता है। स्पीड बॉस ये मेंटेन करता है स्पीड ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, कितने टाइम में काम हो जाना चाहिए, ये स्पीड बॉस का काम है। अगर मशीन्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिपेयरिंग के लिए ये काम ये आती है, और ये सबको इंस्पेक्ट करता है, सारे वर्कर्स को। इट इज द इंस्पेक्टर, ठीक है, ही इज द इंस्पेक्टर। तो गैंग बॉस ये मशीन्स को रेडी रखता है, स्पीड बॉस ये काम ये फॉलो करता है कि काम टाइम पे हो रहा है, स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस ये मशीन्स को रिपेयर करता है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द मशीनरीज, एंड इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्ट करता है सारे वर्कर्स को। So these are the 8 men who are responsible for smooth, efficient work in the factories. ये पूरा उसने मॉडल दिया मिस्टर हेनरी प्योर ने, that is called functional foremanship. ठीक है, it is the first technique, and rest of the techniques I will explain you in the next classes, following classes, whenever it is. ठीक है, keep studying, go through these topics, make a note in your fair copies. ठीक है, I will and ask and tell others also. I will drop a message on the WhatsApp that this time the copies will be checked. Make proper copies. I will ask you when you have to submit your copies in the school. Thank you so much.